Most welcome, my dears. Thank you very much. Now I am going to continue according to the previous videos. As I have taught you the format of notice writing, once more I would like to discuss on it. Going to give a question to have a practice. Yes, format of notice. Now, in this respect, I taught you already that what would be the content, what would be other things as the answer of the questions. What, when, and where. The answer of these three points are very much important, that you have to write in a proper format, in a proper sentence. Whenever you use it, you are not supposed to ask what, don't write what, don't write when, don't write where. Only you have to write the answer of all these in such a way after thinking that. Suppose just I am going to give you a question. Now here, you are Vandita. You are Vandita of class 11. Being a cultural secretary, draft a notice for an inter-school dramatics competition. Now, for dramatic competitions, you have to write the notice so that the name of the school as IRS, IRS Academy. IRS Academy, Gorakhpur. Now, notice. Date, (2020). What would be? Just you have written the name of your school in capital letter, and then you have written the word in capital letter notice. Now you wrote the date, what is the date today, and then after you have to write the content or the topic on which you are going to write the notice. So what is the topic? Inter-school dramatic competitions. Now write inter-school dramatic
competition. Inter-school dramatics competition. It is the subject. Now, first of all, this is known as the heading or the topic. This is the name of the school in capital letter, the word notice in capital letter. You have written here the date, and then you gave the topic or the heading of your notice. Now, begin the notice. क्या होने जा रहा है? An inter school dramatic competition is being organized on 20th July 2020 at Tagore Theatre. Those willing to take part in the items which are school will be presenting should come for selection on 8th July 2020 at 12:30 p.m. in the Assembly Hall. Only class 6 to 12 students are eligible. Dress should be arranged by the participants. Vandita Cultural Secretary.
Now dears, this is the notice, and here you have to keep it in the box. It should be kept in the box, and just you see, I am going to tell you what, when, where. This one is the name of school in capital letter. Now the word notice, also in the capital letter. Topic, now this one is the date. And this is, you see how fantastically the question is presented before you. It is very much essential to you to take care of it. Otherwise, it will take lots of time to understand you. Just you see, what? Anywhere in the notice, I haven't mentioned the question what, the question where, the question when. What, when, where has not been mentioned anywhere, but only I have written the answer of what, when, where. Clear? So, see it. An inter-school dramatic competition is being organized. ये information आप दे रहे हैं. You have been giving an information. An inter-school dramatic competition is being organized on 20th July 2020. ठीक है, एक लाइन में आपने ये दे दिया कि कौन सी चीज़ कब होने वाली है. तो इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन कब होने वाला है? ऑन 20 जुलाई 2020 ये होने वाला है. कहाँ होगा? एट टैगोर थिएटर. कहाँ होगा? टैगोर थिएटर में होगा. माने ये ड्रामेटिक कंपटीशन जो होगा वो 20 जुलाई को टैगोर थिएटर में होगा. ये आपने इन्फॉर्मेशन एक लाइन में दे दिया, एक सेंटेंस में दे दिया. फिर अब आगे आपको क्या कहना है कि भाई ठीक है होगा तो क्या, कंपटीशन होगा तो क्या. तो फिर नोटिस का मतलब क्या है? अब नोटिस आगे लिख रहा है कि दोज विलिंग स्टूडेंट्स है, जिनकी इच्छा है, दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन द आइटम्स. आइटम्स का मतलब यहाँ क्या है? आइटम का मतलब है इवेंट्स. आइटम का मतलब क्या है? इवेंट्स. माने कि क्या क्या इवेंट्स उस ड्रामेटिक कंपटीशन में होने हैं. व्हाट विल बी द इवेंट दैट विल टेक पार्ट इन द ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट और कंपटीशन. तो ये आइटम्स का मतलब इवेंट्स है. ठीक है, तो
take part in the items which our school will be presenting. तो हमारा स्कूल क्या प्रेजेंट कर रहा है? स्कूल विल बी प्रेजेंटिंग, स्कूल विल बी प्रेजेंटिंग, मतलब स्कूल की अथॉरिटी ये आपको बता रही है कि कौन कौन से इवेंट्स होने हैं। स्कूल अथॉरिटी बता रही है कि कौन कौन से इवेंट्स होने हैं। दिस इज द रिमार्केबिलिटी ऑफ द नोटिस। पार्टिसिपेंट्स विल नॉट देमसेल्व्स से दैट आई विल प्ले सच रोल। द स्कूल हैज़ डिसाइडेड, the school has already given the points of events, which are the events, so the school will decide, the school will be presenting. What the school is presenting? The events. So in that events you have to take part. Presenting should come, भाई जो इंटरेस्टेड है वो आए। फॉर किस लिए? फॉर सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन होगा, उनका रिहर्सल होगा, उनका ट्रायल होगा। तो फॉर दैट ऑन कब होना है? ऑन 8 जुलाई 2020 एट 12:30 PM इन स्कूल हॉल, असेंबली हॉल। असेंबली हॉल में यानी कि मीटिंग हॉल में ये चीज़ें, सिलेक्शन का काम मीटिंग हॉल में होगा 8 जुलाई को, और फाइनल इसका जो खेला जाएगा ड्रामेटिक कंपटीशन का वो 20 जुलाई को होगा। और कहाँ होगा? तो टैगोर थिएटर में होगा। तो नोटिस किसके लिए है? नोटिस इस संबंध में है कि सिलेक्शन करने के लिए बच्चे अपना नाम दें। ड्रामेटिक कंपटीशन होगा, उसके सिलेक्शन के लिए बच्चे अपना नाम दें। तो ठीक है, अब क्या है? अब उसमें एक कंडीशन भी है, ओनली क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट, कैन पार्टिसिपेट। प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ये नहीं है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। द क्राइटेरिया हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर अप टू विच लेवल द स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन इट। तो जूनियर और सीनियर दो तरह के स्टूडेंट्स हो गए, एक जूनियर स्टूडेंट्स हो गए और सीनियर हो गए। 8th क्लास तक हो गए एंड एवं 8th क्लास, यानी 9 to 12 हो गए। 6 to 8 एंड 9 to 12 दो ग्रुप है इसमें होगा। अब आगे का क्या बात कर रहे हैं? कर रहे हैं कि जो सिलेक्ट हो जाएगा, दोज हु विल बी सिलेक्टेड, द ड्रेस शुड बी अरेंज्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स कौन है? जो दोज आर टेकिंग पार्ट इन द आइटम्स विल बी कॉल्ड, दे आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। उन्हें पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। तो वो खुद अपने ड्रेस की व्यवस्था करेंगे। इसमें एक लाइन और लिखा जा सकता है, लेकिन वर्ड लिमिटेशन ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा सा उस पर रुक गया हूँ कि फर्दर डिटेल्स कैन बी डिस्कस्ड लेटर, या फॉर मोर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट टू कल्चरल सेक्रेटरी। फॉर मोर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट टू कल्चरल सेक्रेटरी, ये भी लाइन इसमें जोड़ी जा सकती है। लेकिन अब इसने अपना सिग्नेचर किया वंदिता, वंदिता ही है, और ये कल्चरल सेक्रेटरी है, तो आपने लिख दिया वंदिता कल्चरल सेक्रेटरी, इसने अपना साइन कर दिया वंदिता का। तो आई थिंक दैट यू पीपल कुड अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज़ यू आर सपोज टू नोट इट डाउन। मतलब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, कंटेंट बताया आपको। इस पे मैंने आपको कंटेंट बताया है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। तो स्कूल कंपटीशन है, जो लोग इच्छुक हैं वो आएँ और इसमें सिलेक्शन होगा और उनका नाम होगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा कि अब फॉर्मेट जो इसका है, फॉर्मेट 1 मार्क्स का होता है। इस फॉर्मेट में क्या आएगा, आपके स्कूल का नाम जो कैपिटल लेटर में लिखा है आपने, ये नोटिस लिखा है, ये डेट लिखा है, ये आपने
टॉपिक लिखा है, आपने सिग्नेचर किया है ये वंदिता कल्चरल सेक्रेटरी का, और उसके बाद आपने ये ब्लॉक बनाया है। तो अगर इसमें से एक भी पॉइंट छूटा हुआ होगा या गलत होगा तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको कंटेंट में दिया गया है, कंटेंट में आपको 2 नंबर मिलता है। जैसे आपने ये लिखा है तो ये क्लियर आइडिया क्लियर कर रही है कि आपको क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। वो कंटेंट है यानी कि सब्जेक्ट मैटर है कि इस नोटिस का मेन विषय वस्तु क्या है, तो उसको आपने लिखा है, प्रॉपरली दिया है, तो आपको 2 नंबर मिलना है। अगर आपके पास ग्रामेटिकल फॉल्ट्स नहीं है और ये प्रॉपरली चल रहा है तो एक्सप्रेशन कहलाता है, फ्लुएंसी है, कोहेरेंसी है, ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं है तो आपको 1 नंबर है। इस तरह से नोटिस का पूरा मैक्सिमम मार्क जो होता है वो 4 मार्क्स होता है। नोटिस के लिए मैक्सिमम मार्क 4 होता है। तो इस तरह से अब चलते हैं, फिर दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं आपको और देखते हैं कि कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हैव अ टेस्ट ऑफ यू ऑल। हम थोड़ा सा टेस्ट करें आप लोगों का, ठीक है। तो अब मैं इरेज करता हूँ इसको। यस प्लीज। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ यू आर गोइंग टू राइट अ नोटिस फॉर मीटिंग, कोई मीटिंग होने वाली है तो उसमें सबसे पहले उस मीटिंग में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या डिटेल्स होने चाहिए, इसका होना बड़ा ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि मीटिंग के लिए अगर हम नोटिस लिखते हैं तो उसमें क्या हम कर सकते हैं। तो नोटिस फॉर मीटिंग, नोटिस फॉर मीटिंग में अगर हम कहते हैं तो उसमें सबसे पहले हु हैज़ कॉल्ड द मीटिंग, क्या लिखते हैं? जो मीटिंग बुलाए रहता है उसके बारे में कहते हैं हु हैज़ कॉल्ड द मीटिंग। दूसरा हमारा होता है पर्पस ऑफ मीटिंग। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया पर्पस ऑफ मीटिंग। पर्पस का मतलब उद्देश्य, मीटिंग का उद्देश्य क्या है, या फिर एजेंडा लिख सकते हैं, RAGENDA। पर्पस क्या है या मीटिंग का हमारा एजेंडा क्या है, ठीक है। इसके लिए फिर हम डेट और टाइम, डेट टाइम ड्यूरेशन भी देते हैं, डेट है, टाइम है और ड्यूरेशन भी देते हैं, माने किस डेट में मीटिंग होने वाली है, किस टाइम पे मीटिंग होगी और कितने देर तक होगी, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या कब तक का होगा। इसके बाद उसमें हम कुछ डिटेलिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि डिटेल्स ऑफ पर्सन्स हु विल अटेंड द मीटिंग, मतलब कौन कौन से लोग इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, ऑथराइज्ड पर्सनालिटीज़। अथॉरिटी एंड एलिजिबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। मतलब अथॉरिटी, कौन कौन से अथॉरिटी अटेंड कर सकते हैं या कौन से लोग एलिजिबल हैं जो इसको अटेंड कर सकते हैं। देखिए भाई, ये तो हर जगह होता है। 1 मिनट, जस्ट ए मिनट प्लीज़, लेट मी। हाँ चलिए, अब ये हो गया और हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं वेन्यू। वेन्यू का मतलब प्लेस से है कि कहाँ मीटिंग रखा गया है, वेन्यू है कि इस मीटिंग को हम कहाँ रखे हैं। इसके बाद अगर
हमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना होता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अगर हमें देना होता है, या फिर अगर हम फर्दर इंक्वायरी या फर्दर डिटेल्स चाहते हैं, इन केस रिक्वायरिंग फर्दर डिटेल, इन केस रिक्वायरिंग फर्दर डिटेल। तो ये पॉइंट्स हैं। ऐसे हर एक नोटिस का अलग अलग पॉइंट होता है, अलग अलग उसके कंटेंट होते हैं, अलग अलग उसके तौर तरीके होते हैं। तो हम ये नोटिस लिखते हैं। अब ये स्पेशली जो मैंने बताया है, ये 7 पॉइंट्स के बारे में बात किया है, तो दिस इज़ द नोटिस फॉर मीटिंग। अगर हम जैसे हम हाउस मीटिंग, स्कूल में हाउस मीटिंग करते हैं, we conduct a house meeting in the schools on a special day. The whole school has been divided into 4 houses, yellow, red, green, blue, like this, or something else. Some other special name has been provided to the houses. So according to that, if I am the head of my house, then or if I am the secretary of the school, इंस्टीट्यूट सेरेमनी में जो स्कूल के पोस्ट्स होते हैं, जो हेड बॉय होता है, हेड गर्ल होती है, सेक्रेटरी होता है, स्पोर्ट्स कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है, ठीक है। तो उसी में अगर हम सेक्रेटरी हैं एंड आई वांट टू कंडक्ट अ मीटिंग एज द प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ इन्फॉर्म्ड अस टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑन सच पॉइंट्स. So we will write a notice for this, and in that notice we will highlight in the details. That is, though I have written the point, however it should not be written the point as you have seen in the previous notice, that what, when, where, and also the answer of what, when, where will be written in each and every notice. You should be confirmed about it. So let us see another question for this. Let me erase it. Please note it down quickly. Now I am going to write a question. You are Abhishek Rita. You are Abhishek Rita of class 11. Of class 11. Being an क्या लिख दिया जाए, जैसे कि अभी आपने कल्चरल सेक्रेटरी के बारे में देखा है. बीइंग एन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, you are activity coordinator. Draft a notice to all the other activity council, to all the other activity council members, activity council members. ध्यान दीजिएगा कि ऑल दी अदर एक्टिविटी काउंसिल में, आप एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं तो आपके अंदर एक्टिविटी मेंबर्स होंगे टू डिस्कस एंड प्लान
to discuss and plan the activities. अब देखिए, द डिस्कस एंड प्लान एक्टिविटीज़। अब क्या कहा जाए, चलिए ठीक है, 25 दिसंबर का लेते हैं एक्टिविटी फॉर 25 दिसंबर फॉर 25 दिसंबर, दैट इज 25 दिसंबर को क्या होता है भाई, हाँ, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन किया जा सकता है, हैं? क्रिसमस डे सेलिब्रेशन पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, अब आप बताइए, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, एक मिनट, राइट नाउ, थैंक यू। IRAS एकेडमिक गोरखपुर नोटिस, तो फिर व्हाट वुड बी द कंटेंट, किस कंटेंट पे बात हो रही है, किस पर आप डिस्कस करेंगे, जस्ट फाइंड आउट द कंटेंट, कंटेंट को फाइंड करिए, बताइए। हाँ ठीक है, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन पर ही हमारा एक्टिविटीज़ होगी, उसी पर हमारी मीटिंग होती है। तो क्यों नहीं लिखते हैं, एक्टिविटीज़ फॉर सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस डे, एक्टिविटीज़ फॉर सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस डे, activities for celebration of Christmas Day, activities for celebration of Christmas Day, ठीक है। ये हमारा कंटेंट हो गया, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम इसमें किसको एड्रेस करेंगे, whom should I address, किसके लिए कहा गया है, काउंसिल मेंबर के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, काउंसिल मेंबर के लिए कहा गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से, ज़रा इसको लिखने की कोशिश करिए। ऑल द एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स, ऑल द एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स, अब ध्यान दीजिए, ऑल द एक्टिविटीज़ काउंसिल मेंबर्स क्या किया जा रहा है, आर इन्फॉर्म्ड, क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उनको, टू अटेंड क्या, अ मीटिंग, है। तो अब मीटिंग क्या है, मीटिंग कब होगी, कोई एक डेट दे दीजिए, टू अटेंड अ मीटिंग,
कोई कब, एट टाइम दे दीजिए, ठीक है। कहाँ, इन, ये भी जगह हो गया। अब ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप इसमें मीटिंग, ये आप डेट दे दीजिए, ऑन, एट, इन। ऑन इतना मतलब कल होगा, आज होगा, अगर आज होगा तो ऑन नहीं रहेगा, टुमारो होगा तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। अगर आज और कल की बात होगी तो ऑन नहीं होगा। यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। तो ऑन को अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं। ऑन अंडरस्टूड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑन लिखा ही जाए, ठीक। जब कोई डेट डाला जाएगा तब ऑन लिखा जाएगा। अगर आज लिखा जाएगा तो ऑन नहीं है, तो टुडे हो जाएगा। कल के लिए होगा तो टुमारो हो जाएगा। एट टाइम दिया जाएगा, टाइम के लिए जगह है। एट ये क्या है, टाइम के लिए जगह है। ये डेट के लिए है, ठीक है। इन ये प्लेस के लिए है कि कहाँ होगा मीटिंग, ठीक है, ठीक है। अब मीटिंग किस लिए है? द मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस। क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया जा रहा है? द एक्टिविटीज फॉर क्रिसमस डे। द एक्टिविटीज फॉर क्रिसमस डे। अब देखिए, अब एक नई चीज़ कहा जा सकता है कि हम उनको बुला रहे हैं। आई हैव बीन आस्किंग हिम दैट ही शुड कम एंड ही शुड अटेंड द मीटिंग। हैं, यू शुड कम, ठीक है। विथ क्या, यू शुड कम with your ideas। You should come with your ideas and the estimated cost and the estimated cost, as well as the infrastructure, as well as the infrastructures required। यानी कि बस केवल ऐसे ही मत बात कर दीजिएगा, आप अपनी बात रखिएगा कि देखिए साहब, हम ऐसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, और इसमें ये चीज़ लगने हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगने हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स अब यहाँ आप कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट, किसको? कॉन्टैक्ट द पर्सन is contact the person, ठीक है, undersigned। अब यहाँ क्या होगा? अगर रीता है तो रीता, अभिषेक है तो अभिषेक, ठीक है। हाँ, क्या लिखेंगे? एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर। यहाँ साइन करेंगे,
नेम करेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, लिख ही देना, तो फिर एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, रीता एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर। अब इसको आप बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। आपने इसको बॉक्स में कर लिया, प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, कल फिर मिलते हैं। तो कल क्लासिफाइड ग्रुप के नोटिस के लिए बात करते हैं। तब तक के लिए आप इन दोनों पर अपना प्रैक्टिस करिएगा। वैसे अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, you have been asked to inform students of class 6 to 12 about an inter-house dramatic competition। इंटर-हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन के बारे में लिखेगा, इंटर-हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन। इस पर आप एक नोटिस बनाइए। ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। Thank you, my dears. Must enjoy the day. I hope so. Thank you. Goodbye.